Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all here in this webinar session being conducted by TNV Academy. Let me introduce the speaker of the day. It gives me immense pleasure to introduce our guest speaker for today's webinar, Mr. Sunil Kumar. In this webinar today, Mr. Sunil Kumar will discuss about food safety policy. Our distinguished speaker, Mr. Sunil Kumar, has done his master's in microbiology. He is also a lead auditor in ISO 9001, FSSC 22000, and ISO 22000, respectively. Mr. Sunil Kumar has audited several organizations for FSSC 22000 and ISO 22000 standards and has helped several others for their implementation as well. He has vast knowledge on BRCGS compliance, HACCP, and CCP concepts, etc. He has an industrial experience of around 10 plus years in field of food technology, food processing, and in auditing of food related industries. He has been imparting training to a number of organizations, entrepreneurs, and individuals on various topics related to ISO terminologies and their certification and implementation. This was just a brief introduction of our guest speaker today. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Sunil Kumar. I may request Mr. Sunil Kumar now to please take over and start the webinar. Thanks, Apurv and whole TNM Academy to introduce about myself and my education background and the industrial experience. So today we will cover the topic of the food safety policy. So actually, what is food safety policy? And after the end of the session, you will able to learn what is food safety is actually and how to be implemented in the food industry and how it be communicated, how it prepared, and how it audited. So we start with the introduction part of food safety policy. So food safety policy is the most important feature in the ISO 22000 food safety management system. So virtually it set up the scope in the action, and it is the first document any auditor initially looked at. And the intent of the food safety policy is to state the organization commitment to the food safety and the continuous improvement in the preventive of performance throughout the food chain. And while you are applying for the ISO 22K, that is food safety management system, so a strong, clear food safety policy that can be served as a both a starting point for the developing a very good ISO 22000 food safety management system and a reference point for maintaining the continuous improvement. So फूड सेफ्टी पॉलिसी एक्चुअली में क्या है कि जब हम ISO 22000 की सर्टिफिकेशन लेने के लिए जाते हैं तो उससे उसमें हमारा एक इंडस्ट्रियल का स्कोप होता है कि हमें इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, इस प्रोडक्ट का हमें ये स्कोप रखना है। फॉर एग्जांपल हमें मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग या सेल्स या ट्रेडिंग एक्सेट्रा अंडर द स्कोप ऑफ ISO 22000 हम अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लांट के अंदर रखते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने हमें मतलब अच्छा एक ISO 22000 डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री में एक फूड सेफ्टी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, जो कि हर एक लेवल पे कम्युनिकेट करी जाती है, डिस्प्ले करी जाती है एंड अवेयर करी जाती है ताकि एवरीबॉडी शुड बी अवेयर ऑफ अबाउट फूड सेफ्टी पॉलिसी। सो फूड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर हम ना एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि हमें जो भी फूड बनाना है दैट शुड बी फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। So according to the ISO 22000 FSMS standard, the food safety policy must address like define, document and communicate food safety policy. जो भी हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी है वो अच्छी तरह से डिफाइन होनी चाहिए कि हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी बोलती क्या है, कहती क्या है कि हमें अपना जो फूड है विद द कंटिन्यूड क्वालिटी फूड सेफ्टी के साथ बना के कस्टमर को डिलीवर करना है। सो वो चीज़ें हमें डिफाइन करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है और कम्युनिकेट करनी है। डिफाइन हमने मीन डिफाइन कर दी कि हमारी ये पॉलिसी है, देन उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसकी एक प्रिंट निकाल के या उसको हमने डॉक्यूमेंट करने के अलावा उसको कम्युनिकेट भी करना है, हर जगह डिस्प्ले करवाना है प्रोसेस एरिया के अंदर या फॉर एग्जांपल हमें जो हमारा एडमिन एरिया है या उसके अंदर या जहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करते हैं ये शॉप फ्लोर पे एवरी एरिया ऑफ लाइक क्वालिटी प्रोडक्शन सेफ्टी एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टेक होल्डर एरिया, तो हर जगह हमें वो डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेट करनी है। And it also ensure to include the organization appropriate role in the food chain what you are doing। so ये अपने आप में ही एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंडा बताती है कि थ्रू आउट द फूड चेन हम क्या करने जा रहे हैं या क्या हमने करना है, क्योंकि पॉलिसी हमारी डिस्प्ले आउट जब होती है तो उसमें हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट होती है, डिफाइन होती है कि हमारा क्या हमारी पॉलिसी है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का।
So it's also conformity to the applicable regulatory and statutory requirement, including mutually agreed customer food safety requirement. तो एक तो हम जब अपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी प्रिपेयर करते हैं या डॉक्यूमेंट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें हम रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो यही है कि हम अपना जो भी फूड बनाएंगे वो दैट शुड बी फिट फॉर द कंजप्शन, और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। और कुछ एक हमारी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो है सेफ फूड मिलना चाहिए जो कि हमारी कंजम्पशन के लिए सही होना चाहिए, तो वो भी हम अपनी पॉलिसी के थ्रू ही डिक्लेयर आउट करते हैं। एंड कम्युनिकेट मेंटेन इम्प्लीमेंट एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने पहले बात करी कि हर जगह वो कम्युनिकेट होनी चाहिए, पॉलिसी मेंटेन होनी चाहिए, और ईयरली और जो भी आपकी डिफाइंड फ्रिक्वेंसी होगी उसमें हमें उसको रिवाइज भी करना है, और एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लाइक स्टेक होल्डर, हर एक एरिया परस्पेक्टिव सेक्शन पे वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एंड इट ऑल्सो रिव्यू फॉर द कंटिन्यूस सुटेबिलिटी दैट इज अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 5.8। जब हम ISO 22 के लेने जाते हैं तो उसमें हमारा जो क्लॉज है 5.8, that is ask for the food safety policy review, and the review for adequate communication clause number 5.6। so adequate communication के अंदर ही हमारा clause के अंदर requirement आती है इसकी, like your food safety policy should be communicated and include measurable objective। तो हमारे objective भी होते हैं जिसमें हम अपना एक क्राइटेरिया डाल के रखते हैं कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे, उस पॉलिसी को अच्छे से डिस्प्ले एंड ट्रेनिंग देंगे हर एक एम्प्लॉय को और एवरी स्टेक होल्डर को। देन हर टिप फॉर द डेवलपिंग ए फूड सेफ्टी पॉलिसी। फूड सेफ्टी पॉलिसी कैसे बनानी है या कैसे डेवलप करनी है? सो डेवलप ए फूड सेफ्टी लाइक पॉलिसी मैनेजमेंट teams that reflect the perspective of various employee within the company, for example line worker, on like wastewater treatment operator, quality inspector, compliance, legal manager, प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये सारे सेक्शन की तरफ हमें डिस्प्लेड आउट करती है, या हमें जो भी हमारे सेक्शन के लाइक लाइन वर्कर है, ओनर्स है, हर एक जगह के लिए इम्प्लीमेंट रहती है। Second, display the policy statement in view of all employee. The policy should be available to the public and customer if requested, and be printed in language whether the English is appropriate. So including top management signature on the policies to demonstrate understanding and commitment. तो पहले हमने जो हमारी पॉलिसी थी वो हमने मेन डॉक्यूमेंट कर दी, बना ली, या आइडली जो भी हमने उसमें डाटा डॉक्यूमेंट करना था या जो भी हमने लाइंस बनानी थी उसके अंदर तो हमने बना ली। देन हमें यही पॉलिसी वी हैव टू डिस्प्ले, तो जो भी हमारी पॉलिसी की स्टेटमेंट हमने बनाई है ये सभी एम्प्लॉय को डिस्प्ले होनी चाहिए। मीन आप हमने हर सेक्शन के अंदर उसको डिस्प्ले करना है, एरिया के अंदर डिस्प्ले करना है, ताकि जो वो पॉलिसी है हर एम्प्लॉय के पास अवेलेबल हो, और कभी पब्लिकली या कस्टमर से रिक्वायर्ड हो तो उनको भी डिस्प्ले हो। एंड इट शुड बी प्रिंटेड इन लैंग्वेज अदर द इंग्लिश एज एप्रोप्रिएट। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी लाइक हिंदी कल्चर एरिया में हो, या जहाँ पे तेलुगु एरिया, या डिफरेंट स्टेट वाइज जिस भी आप स्टेट में हो वहाँ पे अपनी पॉलिसी आप एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, एक आपको लोकल लैंग्वेज में भी करनी है, ताकि जो लोकल पीपल है या लोकल पर्सन है उनको जो आपकी पॉलिसी अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो। देन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट सिग्नेचर। पॉलिसी के अंदर टॉप मैनेजमेंट के जो भी आपके MD है या डायरेक्टर है, वट एवर जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, उसके पॉलिसी के ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए, इज टू डेमोस्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट। देन द प्रोसीजर इज यूज्ड टू डेवलप एंड राइट द कंपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी। सो कुछ एक स्टेप है कैसे आप अपनी फूड सेफ्टी पॉलिसी को बना सकते हो या लिख सकते हो। So step first, the food safety team leader will form a policy development team responsible for the developing and writing the food safety policy. The policy will address at a minimum like compliance, food safety and continuous improvement. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे एक FSTL होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ISO 22000 ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने FSMS की सर्टिफिकेशन ले रखी है, तो वहाँ पे आपके एक फूड सेफ्टी टीम लीडर डेजिग्नेटेड होते हैं जो कि एक पॉलिसी डेवलप करते हैं, इसी फूड सेफ्टी पॉलिसी को डेवलप करते हैं, जिसमें आप पॉलिसी के अंदर आप जो भी मिनिमम कंप्लायंस होता है जैसे विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, जिसके थ्रू आप पॉलिसी के अंदर चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। Second, the policy development team shall will review other than relevant document to ensure the consistency with the other company policy and guide the content and phrasing of policy. Example document include the company mission statement, then links to the food safety element. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक फूड सेफ्टी पॉलिसी होती है। दैट नॉट मीन कि आप एग्जैक्ट एक ही वर्ड लेके यूज कर रहे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि आई कमिटेड टू द क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड आप भी सेम आई कमिटेड टू द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके या उसमें वर्ड फ्रेज करके भी डाल सकते हो दैट
we are committed to the quality and food safety, that we are here at the XYZ organization making the product which comply to the customer requirement and at all with respect to food safety. तो आप इस तरह से भी उसको फ्रेज कर सकते हो, सब टू यू कैसे कंपनी अपनी पॉलिसी आप उसमें स्टेटमेंट दे रहे हो. Step 3 is the policy will be displayed in view of all employee and introduced to new employee. The policy will be available in language and English as appropriate to the public and customer. So जैसे मैंने पहले बात करी कि जो भी हमारी पॉलिसी है वो हर एक डाउन द लाइन वर्कर जो भी हर एरिया के अंदर वो डिस्प्ले होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय उस पॉलिसी का अवेयरनेस होनी चाहिए, वेदर इन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में भी डिस्प्ले होनी चाहिए, कस्टमर के अगर रिक्वेस्ट के ऊपर या पब्लिक रिक्वेस्ट के ऊपर उनको अवेलेबल होनी चाहिए. Then next step है food safety team leader will review the food safety policy at least annually and updated if needed. So जैसे FSMS का रिव्यू होता है वैसे ही फूड सेफ्टी टीम लीडर FSTL है वो फूड सेफ्टी पॉलिसी को ईयरली रिव्यू करेगा और देखेगा इसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं, हम किसी और चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है, लाइक हमें कुछ और अलग से लिखना है ताकि हम और कुछ कंटिन्यूटी करना चाहते हैं, हम कुछ और इम्प्रूवमेंट डालना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड इट टू दैट और एटलीस्ट यू कैन ईयरली कैन रिव्यू दैट. तो ये एग्जांपल है फूड सेफ्टी पॉलिसी की, लाइक XYZ कोई टी फैक्ट्री है एंड दे आर ISO 2000 सर्टिफाइड एंड द नेक्स्ट इज ब्लैक टी मैन्युफैक्चरर्स. फूड टेस्ट सेफ्टी पॉलिसी उन्होंने कैसे डिस्प्ले करी है, तो कैसे उन्होंने अपने जो वर्ड फ्रेज यूज करे, लाइक वी विल मेक अप श्योर टू प्रोवाइड अवर कस्टमर हाइजीनिकली सेफ ब्लैक टी एंड एडेड वैल्यू इन देयर टी कप. So second, we will ensure to provide pure orthodox black tea made at our factories free from physical, chemical and microbiological hazard which are conforming to the relevant statutory and regulatory requirement. And we will train and motivate our employee continues to upgrade and maintain ISO 2000 effectively. तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जैसे हमने पहले बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर दे कैन यूज एयर ऑन वर्ड फ्रेज, बट जो वर्ड है वो जो यूज किए उन्होंने दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द फूड सेफ्टी. तो फूड सेफ्टी के बारे में ही बात करें, फूड सेफ्टी के बारे में, लाइक यू आर making the food with respect to the customer requirement, you are making the food that is fit for the consumption, human consumption, you are making the food which is hygienically free, you are making the food that is free from any type of hazard. So XYZ आप किसी तरह की कोई भी वर्डिंग फ्रेज करके उसमें डाल सकते हो, बट उसका जो मीन जो आउटपुट यू कैन से दैट उसका जो एंड फ्रेज है दैट शुड बी फूड सेफ्टी. ये कुछ एग्जांपल जैसे हमने अभी बात करी है जैसे टी कंपनी के लिए थी, तो सेम इज the company name XYZ is committed to manufacturing food that are safe and like compliant with the both our customer and regulatory requirement. So we will do this by like ensuring that adequate resources are available to support the continuous improvement of our food safety management system. Then we establish and review the food safety objective with senior site management. Then ensuring we remain informed in new regulatory update, customer requirement, new technology that support the mission of safe food. तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने जो एग्जांपल दी थी फूड सेफ्टी पॉलिसी की, जिसके अंदर हमने हाइजीनिकली लिख के लाइक वी आर प्रोवाइड टू कस्टमर हाइजीनिकली सेफ टी, then we provide the pure like orthodox tea that are free from the any type of like physical, chemical, biological hazard. And next यहाँ पे हमने लिख दिया कि ensuring that adequate soda available to support the continued improvement of FSMS and we remain and inform in every regulatory update, customer requirement and new technology and support the mission of the safe food. तो ultimately वो बात कर रहे हैं कि जो food है that should be safe and should be fit for human consumption. So next है why food safety policy is mandatory. तो food safety policy is mandatory. Senior site management shall prepare and implement a food safety policy statement that outline as a minimum the site commitment to supply safe food. तो एक साइट जो है कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, सीनियर साइट मैनेजमेंट ने एक अपनी पॉलिसी बनाई है और स्टेटमेंट पे लिखा है कि वी आर कमिटेड टू सप्लाई सेफ फूड. Then the method used to comply with its customer and regulatory requirement and continuously improve its food safety management system and the site commitment to establish and review food safety objective. So एक तो आपको जो आपने कमिट किया है अपने कस्टमर को, वी आर प्रोवाइडिंग द सप्लाई फूड, देन यू आर committed to the like customer with the regulatory and the continuing improvement of food safety management system. Then आपकी site is committed to establish the and review the food safety objective. The policy statement that should be signed by senior site management. तो जो भी आपने पॉलिसी बनाई है, इम्प्लीमेंट करी है,
वो आपके सीनियर साइड जो मैनेजमेंट होती है, लाइक आपकी लीडरशिप टीम है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है, आपके डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, वट एवर दी सीनियर मैनेजमेंट आर देयर, तो उनसे वो साइंड होनी चाहिए। एंड इट शुड बी मेड अवेलेबल इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ऑल स्टाफ। हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी लोकल लैंग्वेज है, वेदर इट्स इन हिंदी, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश, वट एवर द लैंग्वेज द लोकल लैंग्वेज आर यूजिंग, उन लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। एंड इट शुड बी डिस्प्ले इन प्रोमिनेंट पोजीशन, और हर जगह पे डिस्प्ले होनी चाहिए, लाइक जहाँ पे आपका जो भी आपके प्रोडक्शन एरिया है, क्वालिटी एरिया है, चाहे स्टोर एरिया, तो हर जगह पे एट एवरी ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लाइक डिस्प्ले इन every section, and it should be effectively communicated to all staff. सब स्टाफ को कम्युनिकेट होनी चाहिए, एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ दैट, और उनको पॉलिसी की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। सो व्हाट्स द पॉइंट हाउ इज मेकिंग अवर प्रोडक्ट सेफर? तो एक्चुअल में फूड सेफ्टी पॉलिसी का एक्चुअल मीनिंग क्या, मीन पॉइंट है, और व्हाई इट इज मेकिंग अवर प्रोडक्ट सेफर, अपने हमारे प्रोडक्ट की क्यों इतना सेफ बनाती है, मतलब इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन। So food safety procedure is what we tend to think of when we consider the GFSC certification. So also known as all the step we should need to get done. But each element of code begin with the policy. We ask to define our value as a company from which our action and imperative will follow. तो जैसे FSMS या FSSC 22000 ISO 22000 में रिक्वायरमेंट है कि आपकी फूड सेफ्टी पॉलिसी है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड एंड डिस्प्ले एंड अवे टू ईच एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो हमारी जो GFSI है, ISO की रिक्वायरमेंट है कि हमारी फूड सेफ्टी पॉलिसी है वो अवेलेबल होनी चाहिए या कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ जो हमने पॉलिसी में स्टेटमेंट दिया है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डिफाइन करती है, और कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन ले रहे हो, तो कैसे हमारी प्रायोरिटी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो हम पॉलिसी के अंदर लिख रहे हैं, वी आर ऑल्सो कमिटेड टू दैट एंड वी फॉलो दैट प्रिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर ऑल्सो। तो हम ऐसा नहीं हमने एक पॉलिसी डिफाइन कर दी और लिख दिया, नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस पाथ पे भी चल रही है, उस एक्शन एंड पैरिटी को भी वैसे ही फॉलो कर रही है। क्योंकि अगर वही पाथ वही चीज हम फॉलो करते हैं जो हमने अपनी स्टेटमेंट में लाइक हमने पॉलिसी स्टेटमेंट में हमने डिक्लेयर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड वी मैन्युफैक्चरिंग वी आर प्रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फूड मोर सेफर। By asking you, an organization establish food safety as a part of company core value, not just a series of form or tasks to be completed, but a holistic view that when we strategize and determine the direction our business will take, so food safety is going to be such a much a part of the discussion as a finance. तो जैसे हमने पहले बात करी कि ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक फूड सेफ्टी पॉलिसी को जस्ट डिफाइन कर देती है और लिख देती है, दैट्स नॉट। और जहाँ पे आपके साइट मैनेजमेंट सीनियर लीडरशिप के लाइक सिग्नेचर होते हैं इस पॉलिसी के अंदर, सो मेन दैट डिफाइनिंग ओवर कंपनीज कोर वैल्यू, हमारी कंपनी की कोर वैल्यू को डिफाइन करती है कि जस्ट हम वहाँ पे जो चीज़ लिख रहे हैं वैसे ही हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ें इंप्लीमेंट करती है। अगर हमने वहाँ पे लिखा है कि वी आर प्रोड्यूसिंग सेफ, तो हम सेफ फूड बना रहे हैं। अगर वहाँ पे लिखा है हमने पॉलिसी के अंदर भी प्रोड्यूसिंग दी सेफ फूड विद द डिटेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी फूड सेफ्टी हजार्ड, फॉर एग्जांपल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हम उन सभी हजार्ड को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के साथ हम जो अपना फूड बना रहे हैं दैट इज सेफ एंड दैट इज सेफर एंड दैट इज फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी बिजनेस की डायरेक्शन पे चलते हैं, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमने डिक्लेयर करा है स्टेटमेंट के अंदर, उसी स्टेटमेंट के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपनी बिजनेस की डायरेक्शन को लेके चलते हैं, और वी आर मेकिंग द फूड दैट इज सेफ एंड fit for the consumption. So by asking as an organization to establish food safety as a part of company core value, so not just a series of form or tasks to be completed, but a holistic view that when we strategy and determine the direction of our business that will take, and the food safety is going to be just much a part of that discussion as a final. So जैसे हमने पहले बात करी कि ऐसा नहीं कि जस्ट फूड सेफ्टी पॉलिसी हमने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी, like we are producing the safe food with the control of these hazards like physical, biological, chemical, वो ओनली जैसे एक स्टेटमेंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो कंपनी कोर वैल्यू। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू बन जाती है जिसके थ्रू यू मेक योर स्ट्रेटजी एंड यू ऑल्सो डिटरमाइन हाउ यू टेक द डायरेक्शन ऑफ योर बिजनेस। सो कैसे आप अपने फूड का बना रहे हो, कैसे अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कैसे अपनी आप पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो स्टेटमेंट आप देते हो, तो आप अपनी जो डायरेक्शंस हैं, तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी और मेकिंग अकॉर्डिंग टू दैट।
सो अगर आपने डिक्लेयर किया वहाँ की, वह मेकिंग ओवर द फूड सेफ, दैट इज फिट फॉर कंजप्शन, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ hazard. So food safety is going to be a much part of that discussion as your finance part also. कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट एंड वो सब कुछ इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हो, वहाँ पे आप उस चीज़ को लेके चलते हो, लाइक दिस इज अवर कोर वैल्यूज. तो इट्स लाइक फूड सेफ्टी इज गोइंग टू बी ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्कशन विद यू एज ए फाइनेंशियल पार्ट टू. So accepting and committed to the food safety as a senior management value empower the department team, the individual to also treat the food safety as a priority in their work. So it show all level of organization that GFS certificate is not just a pile of requirement, but a representation of what leadership is going to look for, what they identified high performer and reliable employee. So तो फूड सेफ्टी जैसे हमने कमिट किया कि वी आर मेकिंग दी सेफ फूड, जस्ट ओनली नॉट ओनली द कमिटमेंट कि हमने कमिट कर दिया कि वी आर मेकिंग दी फूड सेफ्टी एज ए लाइक with the like ownership of the senior management, like empowering the different department teams and individual to make the safe food, to prepare the safe food. And they always have to make a priority in their work कि हमें जो भी हमने अपना फूड बनाना है that should be safer and fit for the consumption. क्योंकि एक तो ये जीएफएसआई की आईएसओ की रिक्वायरमेंट है एंड ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को एक्सेप्टेंस लेके चलती है, और ज़रूरी नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन की itself है, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी बेटर रहती है, क्योंकि आप जो आपकी और जो लीडरशिप टीम है, जो आपकी मैनेजमेंट है, they are going to look when they have identified like high performance and how they are making this the policies implemented at all level of the organization. So how it will be audited? So auditor are going to look at the document, how it's made available to your staff, and whether anyone on your production floors know what is and where to find it. And if they talk to the seller new like temp say how we have no idea. So I just put it on the line. So that's what going to the potential issue. So for the most part, like effective implementation and evidence of management commitment is going to be more covered by close management responsibility. सो ऑडिटर जब भी आता है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपने लिखा है कि मेरी फूड सेफ्टी पॉलिसी है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर कमिटेड टू द सेफ फूड, तो आपकी कमिटमेंट है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, और वो पॉलिसी आपने अच्छी तरह से डिस्प्ले भी करवाई है, कम्युनिकेटेड करवाई है, तो इसीलिए ऑडिटर जब आता है तो अपने क्लॉज के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी के अवेयरनेस का क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइक शो फ्लोर पे जाके या आपके एम्प्लॉयज से भी, जो ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर जो भी एम्प्लॉय, उनसे किसी से भी इंटरव्यू लेके पूछ सकता है या पूछता भी है कि व्हाट इज़ योर फूड सेफ्टी पॉलिसी, व्हाट इज़ योर क्वालिटी पॉलिसी, व्हाट इज़ योर फूड सेफ्टी पॉलिसी रिक्वायरमेंट, व्हाट आर योर फूड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव. तो वो ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय से ऐसे आस्क रखता है, और उसी आस्क के अकॉर्डिंग वो अपनी नॉन कन्फर्मिटी या अपनी फाइंडिंग भी दे के जाता है. अगर कंप्लाई कर रहे हो तो ही विल सेड यू आर कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वहाँ पे आप नहीं कंप्लाई करते हो या अपनी, या आपने पॉलिसी अच्छे से अवेयर ही नहीं करवाई, उसकी पॉलिसी की ट्रेनिंग ही नहीं दी है, तो दे विल मेक ए नॉन कंफर्मिटी ऑन इनटू एंड दे आल्सो मेक ए नोट्स ऑन दैट कि ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इज नॉट कमिटेड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Typically, point of like contention will be when auditor disagree with the language in your policy. That's fine as long you can define it. Make sure your policy obvious cover all the component identified in the code, and don't worry about auditor who want to be go after semantics. So is it not allowed if an auditor claims you did not say continuously improve? When your statement says our system is going to flexible and achieve the highest quality possible to support our customer, of course, that means you are going to review and improve it. Back it with the evidence you are actually do, and feel free to the auditor grows about how they would have written something different. सो सेम एज वी डिस्कस के जैसे आपने पॉलिसी के बारे में आपने देखा या जो भी आपने पॉलिसी में स्टेटमेंट दी है, तो वही चीज़ आपकी शॉप फ्लोर में इम्प्लीमेंट भी है. ये ज़रूरी नहीं है कि ना कि ऐसा कानून है कि आपने वो लिख दिया और जस्ट आपने जस्ट वर्ड ही डाल दिए कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, और उसके वर्ड के बिना बिना आप बस यू आर नॉट कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग योर स्टेटमेंट एंड ऑल यू द वर्ड्स यू आर सेटिंग इनटू योर. बट एक्चुअल में जो आपने लिखा वो शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट भी होना, चाहे वो सिंगल लाइन में लिखा है, चाहे 3 लाइन्स में लिखा है, चाहे 4 में, जो भी आपने लिखना है वो शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. कि जो भी मान लो अगर आपने लिख दिया मेरी पॉलिसीज कमिटेड टू दिस एंड वहाँ पे हमने ऑडिटर देखता है, वो चेक करता है डॉक्यूमेंट के, जो भी आपने स्टेटमेंट में तो ये लिखा है हम अपना ये हजार्ड कंट्रोल करेंगे, वो हजार्ड कंट्रोल करेंगे,
बट मैंने आपके डॉक्यूमेंट चेक किए, वहाँ पे तो ऐसा कोई हज़ार्ड ही कंट्रोल नहीं है, वो आपके यहाँ पे फिजिकल हज़ार्ड भी आ रहा है, बायोलॉजिकल भी आ रहा है। तो जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, तो वैसे ही आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोड्यूस ए हाईली क्वालिटी safe and the safer product for the consumption. Next is the part how it will be audited with the other versions. Like if not in the company, their liability it's yours. So as the opinion of a single audit, that should not change the way your entire facility committed to the food safety value from the top of the other 360 day of the years. So modified your mission statement based on the auditor preference, like, which violates our golden rule. सो कभी कभार क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिसी के अंदर स्टेटमेंट ऐसा लिख देती है, बट वो ऑन द फ्लोर जो है ऑन द, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू डू देयर बेस्ट। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ने जस्ट लिख दिया। कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मीन एबल टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली। कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो लिख देती है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, but auditors come for the like correction in the statement, or it make a preference in the statement how you can when avoid to violate this the policy, and how you can improvement make improvement into your safety policy, so you can make a safer food. So the next is the policy acknowledgement. The policy acknowledgement that the amendment food act require council to take a like risk based approach to assessment of food safety at the food business. So to that effect, the four classes of food business have been gazetted by the state government. So that is the class one for premises serving potential hazardous food to the customer at higher risk, for example, nursing homes, hospital, and child care. So class two for premises engaged in manufacturing and handling of any like unpacked potential hazardous food, such as food which require the temperature control. Then class three, these are the premises handling low risk food for the wholesale of like pre-packed food, or the selling pre-packed and potentially hazardous food. Then the class four for premises selling only like shelf stable and pre-packaged food. सो कुछ क्लॉजेज हैं जिसके क्लासेस हैं जिसके अंदर लाइक फूड बिजनेस है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गजेटेड क्लासेस डिस्प्ले करी हुई, लाइक क्लास वन है जिसमें कि प्रमाइसिस जो कि हजारडिस फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जैसे कि हम नर्सिंग होम्स में ले लेते हैं या हॉस्पिटल में लेते हैं या चाइल्ड केयर सेंटर्स में होते हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी है दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड इम्प्लीमेंट। एंड देन सेकंड है प्रमाइसिस, जहाँ पे आपका जो अनपैक फूड है या ऐसे हजार्डियस फूड है जिनको टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होता है, वहाँ पे योर पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। एंड क्लास थ्री है जहाँ पे ऐसी प्रमाइसिस जहाँ पे लो रिस्क फूड होते हैं या होलसेल होती है प्री पैक्ड फूड की, या पोटेंशियली हजार्डियस फूड होते हैं जो कि ऑलरेडी मीन प्री पैक सेल किए जाते हैं। एंड क्लास फोर होती है प्रमाइसिस जहाँ पे आपके मीन ओनली स्टेबल शेल्फ स्टेबल एंड प्री पैक्ड फूड होते हैं। सो मोस्टली जो हमारी क्लास फोर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपको फूड सेफ्टी पॉलिसी एंड अकॉर्डिंग टू द फूड एक्ट आपको डिस्प्ले करनी होती है, कम्युनिकेटेड करनी होती है, एंड शुड बी रीच एट ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी आपने कमिटमेंट करी है, जो भी आपने पॉलिसी डिक्लेयर करी है, that should be implemented and maintained and documented at each level of the organization at each section, and it should be available to the each employee. हर एम्प्लॉय के पास उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर सेक्शन में उसका डिस्प्ले होने चाहिए कि जो भी आपकी लीडरशिप टीम है, जो भी आपकी मैनेजमेंट है, जो वो फूड सेफ्टी के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं, दैट शुड बी एप्लीकेबल एंड इम्प्लीमेंटेड। So this is the classes of how you the policy is acknowledged. तो जो भी मैनेजमेंट लाइक लीडरशिप टीम इज कमिटेड कि वी हैव टू प्रोड्यूस अ सेफ फूड विद द फ्री टाइप एनी टाइप ऑफ हजार्ड। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को उन लाइक जो एक्नॉलेज कर रहे हैं पॉलिसी को, जो लाइक जो वर्ड फ्रेज कर रहे हैं, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को उन वर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस पॉलिसी का हर एक लेवल पे उसको कम्युनिकेट करना है और इसको अवेयर करवाना है। So this was all about of food safety policy implementation, documented and defined, and also the way how the auditor audited and the acknowledgement of the food safety policy. So thanks to all of you. Thank you, Mr. Sunil Kumar, for such a wonderful session you have given on food safety policy. And I must say that all the aspects and points has been covered, I guess, which are related to the concept of food safety policy. So I can now come to the conclusion of this particular session, and I would say that we have been really benefited by your sheer knowledge on the ISO 22000
standard, which in which you have discussed that what is a food safety policy, how it should be implemented, documented, and communicated within the organization.